I got the sunset in my pocket, and I'm not afraid to use it. Now I'm feeling superhuman. That's the point of the illusion. Like I'm the man round here. 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 Baby, you can't stomp me out. You know you. मैं तो दाढ़ी भी रख लाऊंगा. You can't stomp me out. You know you can't even slow me down. You know I'll spread this wild around. So if you shoot, you better shoot me now. Shots fired on me. Shots fired on me. आयो मेरी डालियाँ रखा इनमें जमिया If you find a change of heart, I might forgive you. But if you keep running that mouth, it just might kill you. You can't stomp me out. You know you can't even slow me down. You know I'll spread this wild around. So if you shoot, you better shoot me now. Baby, you can't stomp me out. You know you can't even slow me down. You know I'll spread this wild around. So if you shoot, you better shoot me now. Shots fired on me. Shots fired on me. ना किसी हो जावे बुढ़ना Shots fired on me. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on me like. I'm dreaming of you, I dream of a new night. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you
feeling down. Faded in this dark and smoky room, with your face reflecting bright green, brights and blues. You know I can't go on to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just like I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Don't wanna fuck this whole thing up like I do every time. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'll fire in my heart, yeah. In the quiet, all my thoughts run free, so I drown them out at night with my TV. You know I got to try to ignore these thoughts that go back and forth inside my head. I should stop before I'm in too deep and I can't go back. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'll fire in my heart, yeah. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'll fire in my heart, yeah. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get out of this maze and run. Please strike me thunder, let me get closer to the light. Please strike me thunder, so I can be free.
Just dive right into the wild side, and I'ma ride the wave until I die. Until I die. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape, let's escape. Let's escape. ओके गाइज, सो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल स्वीट। ये 1 बेडरूम हेरिटेज स्वीट है। द रीज़न इज़ कि मुझे ये स्वीट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है इज़ बिकॉज पहला तो ग्रैंडियर, सेकंड थिंग ये कि जैसे मैं मेरी एंट्री में ही आपने देखा होगा जो आपको ये एरिया दिख रहा है दैट इज़ अ फॉयर रूम। इसका थोड़ा सा लेआउट आपको पहले बता देता हूँ कि सिचुएटेड कहाँ पे है। सो इट्स अ कॉर्नर रूम, जो मर्दाना कोर्टयार्ड है उसके अराउंड ही सिचुएटेड है रूम, और जो कॉर्नर है दैट 1 कॉर्नर इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाथरूम, तो वो हमारा बाथरूम है। इसके अलावा जो 2 सेपरेट बालकनीज़ हैं उसमें जो फर्स्ट बालकनी है दैट इज़ द मेन बालकनी जो मेरे ठीक सामने है, और उसका एक्सेस इट्स काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट एक्सेस, और एक बालकनी ठीक मेरे राइट साइड में है। देखिए बहुत कुछ है, स्वीट इज़ सो एक्स्ट्रावेगेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, तो वो सारी चीज़ों का वेट करिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द बेडरूम। अब मैं आपको बेड एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब मैंने स्वीट में एंट्री ली थी तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि इन्होंने इसको पोस्टर बेड क्यों नहीं बनाया, बिकॉज बहुत सारी पैलेस प्रॉपर्टीज़ हैं, रॉयल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें आपको पोस्टर सॉर्ट ऑफ बेड दिखेगा, बट अगर वो उस तरीके का कुछ ऐसा बनाया जाता तो जो हमारे पीछे आपको पेंटिंग दिख रही है हैंड पेंटेड पैलेस, उसकी शोभा में कमी आ जाती। इसलिए मेरे थॉट में जो ये लुक क्रिएट किया गया है उसकी वजह से इसका जो ग्रैंडियर है, जो रॉयल्टी है, जो जोधपुर में आप कहीं से भी हो आपको जो जिस लेवल पे ये दिखता है उसको मेंटेन किया गया है। इस एरिया की स्पेसिफिकली बात कर दूं तो इसके अलावा आपको कुछ छोटी पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। जो रॉयल फैमिली है उन्हीं का ही आप ऐसे समझिए जो लेगेसी से एसोसिएटेड पेंटिंग्स है वही आपको पूरे स्वीट में अलग अलग जगहों पे दिख जाएंगी। बेड एरिया में कुछ और चीज़ों की अगर बात करें तो हमारे जो लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको नाइट स्टैंड दिख रहे हैं जो कि फिक्स्ड हैं, उनमें कुछ कंट्रोल्स हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों तरफ सेम कंट्रोल्स हैं, इट्स जस्ट दैट एक ही चीज़ डिफरेंट है, दैट इज़ द मास्टर स्विच। तो जो हमारी सबसे पहली लाइट है दैट इज़ द बेड साइड लैम्प, दिस वन। उसके बाद हमारे पास रीडिंग लाइट आ जाती है, और लास्ट में वी हैव दीज नाइट लाइट्स जो नीचे आप जला सकते हो व्हेन यू क्लोज एवरीथिंग। इसके अलावा इस एरिया में कुछ भी खास नहीं है। नीचे
टेलीफोन के साथ साथ आपको एक 3 प्लग पॉइंट दे रखा है जिससे आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो एंड बोथ साइड्स सेम थिंग इज़ देयर। एक चीज़ और, इस तरफ से थोड़ी सी रोशनी सी आ रही है, वो बालकनी की वजह से है। ये बालकनी आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल। बेड एरिया तो आपने देखा, बट बेड एरिया के ठीक सामने ऐसा लिविंग एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय जाता है, मेरा तो काफ़ी ज़्यादा जाता है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। खाते खाते आपकी वजह से रुका हुआ था मैं वरना एज अ फ्रेंड जब हम आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं उनको निपटा देते हैं, उसके बाद कोई काम शुरू किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ इसको समझ लीजिए, वी हैव अ 2-सीटर काउच हियर। यहाँ पे एक बंदा बैठ सकता है। मुझे थोड़ी जेलसी होती है जब मैं वहाँ नहीं बैठ पाता हूँ बिकॉज दैट 2 सीट्स आर मच मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू देम। सेकेंडली यहाँ से आप आराम से टीवी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। वैसे मैंने गलत कॉन्डिमेंट ले लिया है, मुझे ये वाला लेना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अ राजस्थान स्पेशलिटी और थोड़ा तीखा होता है मेरे लिए, बट अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर मोर बिकॉज दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। आराम से आप ज़्यादा खा सकते हैं। टीवी वहाँ से भी एंजॉय हो सकता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ से एक बेटर व्यू आता है, बेटर पर्सपेक्टिव है और यहाँ पे बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो। ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो बिकॉज गर्मी बाहर ज़्यादा है, बालकनी का उतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है समर्स में, सो यू कैन एंजॉय दिस प्लेस। फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, दीज आर ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री। मेरे प्लम्स फेवरेट है तो मैंने रीऑर्डर कर दिया, वो आ रहे होंगे, बट आप चाहो तो जो भी चीज़ें आपको पसंद है यू कैन आस्क द रिसेप्शन और रिक्वेस्ट। अब लिविंग एरिया के बाद थोड़ा सा जो मेरे बैक से पर्सपेक्टिव है वो उसको ले लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वर्क डेस्क एरिया में जब भी मैं किसी पैलेस प्रॉपर्टी में आता हूँ, रॉयल प्रॉपर्टी में आता हूँ, तो मेरे तो किसी काम आता नहीं है। आई एम श्योर आपके ज़रूर काम आ सकता है। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वेलकम नोट। उसके बाद ये लॉन्ड्री सर्विस का मेन्यू है, इसमें रेट्स हैं। नीचे एक राइटिंग पैड है, इस तरफ सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल नोट पैड, इस तरफ हमारे पास फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान के ठीक बगल में ये एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस डिटेल इन द वर्डिक्ट सो दैट आपको पता हो कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंड कौन सी चार्जेबल है। दिस इज़ अ सेव माई प्लानट सॉर्ट ऑफ एन इनिशिएटिव, सो प्लीज़ प्लेस दिस कार्ड ऑन द बेड इफ़ यू सपोर्ट द कॉज कंजर्विंग फॉर टुमारो। प्लीज़ डू नॉट चेंज माई लिनन टुडे। सो अगर आपका 2 दिन का स्टे है एंड तब भी आप सोचते हो कि नहीं मेरी लिनन नहीं चेंज होनी चाहिए बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ वाटर टू वॉश ऑल दैट, तो यू कैन प्लेस दिस ऑन योर बेड। फेस मास्क हमको दिया हुआ है एंड दीज आर द बुक मार्क्स, बहुत अच्छे, इनको आप कैरी कर लीजिएगा इफ़ यू विश टू। एंड ऑफ कोर्स दिस पेन, इस पे उमेद भवन पैलेस की ब्रांडिंग है। नीचे ड्रॉर्स हैं, ये वाला खाली है, इसमें हमारे पास मेन राइटिंग पैड है एंड एक पोस्ट कार्ड भी पोस्ट कर दीजिएगा किसी लव्ड वन को फ्रॉम उमेद भवन पैलेस। एंड दिस ऑफ कोर्स इज़ अ बेसिक चेयर। सामने आपको टेलीविज़न दिख रहा होगा, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑपरेट इट। तो यहाँ पे पीछे एक स्विच दिया हुआ है जो कि जिससे आप ये रीडिंग लैम्प को ऑपरेट कर सकते हो और इसको आप अपने हिसाब से इसका एंगल चेंज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे कितनी लाइट चाहिए। रियली नाइस। दिस इज़ द टीवी कैबिनेट, सोनी का टेलीविज़न है, पैलेस प्रॉपर्टी, रॉयल प्रॉपर्टी, सारे HD चैनल्स। ये है असली मज़ा, 5 स्टार होटल से देते नहीं, कंजूसी कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसी से एसोसिएटेड ब्लू रे प्लेयर टीवी का वो यहाँ पे रखा हुआ है और ठीक बगल में हमारे पास रिमोट है। टीवी कैबिनेट इतना ग्रैंड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर मिनी बार है। दिस इज़ द मिनी बार मेन्यू। पॉकेट पे बहुत भारी है, ऐसे बहुत हल्का है। और मैं अब आपको मिनी बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन टी का वो मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर एस्टेट्स है स्टिल रिमेंबर, ये सबसे पहले मैंने ट्राई करी थी लेक पैलेस में। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इट्स नॉट ओनली द टेस्ट, जो पाउच कैरिंग है दैट इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट क्वालिटी। टी सैशेज़ की बात करूँ तो वी हैव असम सफारी, इसके पीछे वी हैव दार्जिलिंग हिमालयन, देन वी हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इधर आपको मिल जाएगी मसाला चाय, यहाँ पे हमारे पास प्योर ग्रीन टी एंड दिस इज़ अर्ल ग्रे। दीज आर द टी सैशेज़। पीछे आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाती है, ये फ्रेंच प्रेस मशीन है, इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ अपने अलीला बिशनगढ़ के वीडियो में, सो यू कैन वॉच दैट। दिस इज़ इटलीज फेवरेट कॉफ़ी लवाजा। यहाँ पे आपको टाटा कॉफ़ी ग्रैंड के कुछ सैशेज़ मिल जाते हैं, ये शुगर सैशेज़ एंड दीज आर मिल्क शुगर फ्री सैशेज़ एंड एक्वाफिना की बॉटल्स। हिमालय की भी वाटर बॉटल अवेलेबल है ऑन दी बेड साइड्स, तो आप चाहो तो उनको भी कंज्यूम कर सकते हो। नीचे बहुत ही कहूँगा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड आपको कप्स मिल जाते हैं। ऑन दी राइट वी हैव
दिस ब्यूटीफुल मिनी बार। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास ब्लैक लेबल है, ब्लैक लेबल के बगल में ग्लेनलिवेट है, देन वी हैव जोधपुर जिन। दिस इज़ समथिंग विच यू शुड ट्राई। बड़ी बॉटल नहीं तो आप ये पी सकते हो यहाँ पे। कॉग्नैक, हेनेसी, एब्सोल्यूट वोडका। नीचे किंगफिशर प्रीमियम बियर, सूला की रेड एंड वाइट वाइन। कुछ और ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो उधर भी है पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, रेड बुल एंड पेरियार का स्पार्कलिंग वाटर। पीछे श्वेप्स के टॉनिक वाटर है। ऊपर आपको मिल्क मिल जाता है कंडेंस्ड। ठीक बगल में वी हैव टॉबलेरॉन चॉकलेट और उसके ऊपर भी डिटर स्पॉट्स एंड नीचे वी हैव 2 ग्लासेस। सो दिस इज़ द मिनी बार। मिनी बार की प्राइसिंग थोड़ी सी समझ लीजिए। ब्लैक लेबल इज़ 1200, जोधपुर जिन इज़ 1150, एब्सोल्यूट वोडका इज़ 1100, सोडा वाटर 200 रुपये का है, टॉनिक वाटर 200 रुपये का है। इसके अलावा रेड बुल इज़ 295 और डोमेस्टिक बियर इज़ 500। बाथरूम के डोर से समझ में आ रहा होगा कि कितनी डिटेल्स पे ध्यान दिया जाता है। एज सून एज यू ओपन दिस डोर यू एंटर द बाथरूम। ओके, बाथरूम में सबसे पहले यहाँ पे यू कैन हैंग योर बाथरोब्स। दिस इज़ द WC एरिया और WC के ठीक बगल में वी हैव द वैनिटी। 2 वैनिटीज़ हैं, ठीक इसके ऑपोजिट एक वैनिटी है। मैं आपको WC दिखाता हूँ। सबसे पहले WC की तरफ चलते हैं। हियर वी हैव द WC। आपने बहुत कम देखा होगा कि आपको जो सीट रेस्ट और लिड मिले ये वुड का हो। हाँ, एक चीज़ और, ये यहाँ पे अटकता नहीं है, नीचे आ जाता है बार बार, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और टेलीफोन इज़ गिवन फॉर इमरजेंसी पर्पसेस और ठीक यहाँ पे आपको एक बिडेट मिल जाता है। ओके, सो जो मैंने वैनिटी बताई थी उसके ठीक ऑपोजिट दिस इज़ द वैनिटी। आपका ध्यान थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा बाथटब, बट इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहले वैनिटी पे जो हमें बाथरूम एसेंशियल्स दिए हैं उनको समझ लीजिए। लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो ये हैंड टाल्स हैं, बॉडी लोशन है। लेट मी टेक इट आउट। इसमें आपको डेंटल किट मिल जाएगी। डेंटल किट के बाद वैनिटी किट है, डिस्पोजेबल बैग है, शार कैप है। यहाँ पे आपको बटर सोप मिल जाता है, टैप्स हैं हॉट एंड कोल्ड के कंट्रोल के लिए और इस नॉब को आप यूज़ कर सकते हो पानी ड्रेन या फिर रोकने के लिए। एक प्लांट लगा हुआ है। टॉयलेटरीज जो है वो सारी फॉरेस्ट एसेंशियल्स की ही हैं। कंडीशनर है, शैम्पू है एंड शावर जेल है। फ्लेवर की अगर मैं बात करूँ तो बेला एंड काफिर लाइम है। टिश्यू स्टैंड, इस तरफ आपको एक और हैंड टाल मिल जाती है। इस तरफ दिस इज़ फ्रीज्ड एंड यहाँ पे वी हैव द हेयर ड्रायर। ठीक सामने अगर मैं बात करूँ तो वी हैव दिस मैग्निफिशेंट बाथ टब। ये बाथ टॉवल्स हो गई। कुछ एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये हैंड टॉवल्स हैं। इस तरफ आप इससे पानी भर सकते हो। दिस इज़ टू क्लीन योर सेल्फ, हॉट एंड कोल्ड के कंट्रोल्स। यहाँ पे हमारे पास बॉडी लूफा है और ये मैट है। मैंने देखा ये जो हमारा बाथरूम शावर एरिया है वहाँ पे नहीं लगी हुई है, तो आप चाहो तो इसको वहाँ पे भी डाल सकते हो और यू कैन यूज़ इट हियर एज वेल। और यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट इन और गेट आउट। एक चीज़ और, ये जो रास्ता इस तरफ जा रहा है दिस इज़ एन इंटरकनेक्टिंग वे। ये आपको वार्डरोब या चेंजिंग रूम की तरफ और लगेज सेक्शन की तरफ लेकर जाता है और यहीं से आप अपने रूम में भी जा सकते हो। एंड फाइनली इस मैग्निफिशेंट बाथ टब के ऊपर जो ये मिरर लगा हुआ है इसके ठीक पीछे इस द शावर एरिया। तो अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। बाथ टब के ठीक पीछे भी है द शावर एरिया और राइट में ये खुल जाती है, तो इसको बालकनी आप नहीं बोल सकते। छोटा सा स्टैंडिंग एरिया है, आप चाहो तो बाहर जा सकते हो बट आई वोंट एडवाइस। इस तरफ ये द शावर क्यूबिकल, ऊपर आपको रेन शावर मिल जाता है। ये हैंड शावर है, ये हैंडल टू कंट्रोल। इस तरफ हॉट एंड कोल्ड कंट्रोल्स है, सब कुछ जैगुआर का है। हियर वी हैव दीज टॉयलेटरीज, शैम्पू, शावर जेल एंड कंडीशनर। ओके, बाथरूम से चलते हैं हमारे वार्डरोब एरिया की बात करूँ तो बीच में हमारे पास वार्डरोब एसेंशियल्स हैं, आयरन बोर्ड है, हैंगर्स हैं, सिर्फ एक टाई हैंगर भी है। इस तरफ बाथरूम स्लीपर्स के ठीक बगल में क्लोथ ब्रश, उधर शू स्पूनर, शू मिट, शू बैग एंड शू क्लीनर्स। सारे के सारे ड्रॉर्स एम्प्टी हैं, सिर्फ एक ड्रॉर है जिसमें कुछ है एंड दैट इज़ दिस। इसमें आपको लॉन्ड्री बैग मिल जाता है, स्विंग किट मिल जाती है और ऊपर वी हैव द सेफ। लगेज सेक्शन में एम्पल लगेज स्पेस है, आराम से आप 2 से 3 या 4-5 बैग भी प्लेस कर सकते हो। इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे सारे ड्रॉर्स एम्प्टी हैं एंड दिस इज़ अ ड्रेसिंग टेबल। ये बाहर आ जाता है, सिट हियर एंड ड्रेस योरसेल्फ। यहाँ से ही जो मैं बात कर रहा था आपका इंटरकनेक्टिंग डोर है जो आपको सीधा स्वीट में ले जाता है। यहाँ से आ जाइए
एंड दिस इज द स्वीट। लगेज सेक्शन से ठीक बाहर जब आप इस तरफ आओगे तो बेड के ठीक बगल से ये रास्ता जाता है एंड दिस इज द एडजेसेंट बालकनी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द स्मॉलर और से द सेकंड बालकनी। 2 चेयर्स मिल जाती हैं, वेरी कंफर्टेबल। सामने आपके कॉफ़ी टेबल है, आप अपने हिसाब से जो भी चाहें यहाँ पे रह के एंजॉय कर सकते हैं। व्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमें गार्डन और से पैलेस एंट्री का व्यू मिलता है यहाँ से, विच यू कैन एंजॉय थॉरली। लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन बालकनी ऑफ द रूम। फर्स्ट इज़ द ग्लास डोर, उसके बाद हमारे पास मेश डोर है। आप चाहो तो विंटर्स में आप उन सीजन्स में इसको खुला छोड़ सकते हो टू हैव फ्रेश एयर इनसाइड। टॉकिंग अबाउट दिस बालकनी, आराम से बैठिए, चिल करिए, एंजॉय करिए। यहाँ पे टी कॉफ़ी ड्रिंक्स जो मन करे एंजॉय करिए, हवा बहुत अच्छी आती है। सेकेंडली व्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको मेहरानगढ़ और सिटी का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। सामने जो मेश लगी हुई है वो उसका फ़ायदा ये है कि ये जो जगह आपको इतनी साफ़ सुथरी दिख रही है वो इसी वजह से, बिकॉज पिजन्स की एंट्री अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस मेश, सो दैट इज़ समथिंग विच डजंट ऑब्स्ट्रक्ट। मर्दाना कोर्टयार्ड की तरफ जाते हुए कॉरिडोर में पहला रूम रॉयल फैमिली लेगेसी को डेडिकेटेड है, विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ चिलिंग रिलैक्सिंग रूम एंड बिजनेस सेंटर, जिसके ठीक सामने ट्रॉफी बार है। ट्रॉफी बार का इंटीरियर रॉयल फैमिलीज के द्वारा हंटेड एनिमल हेड्स, हाथी दांत, बारहसिंगा के सींग वगैरह को ट्रॉफी की तरह दर्शाकर सजाया गया है। एंड द सेम थीम इज मैच्ड इन सीटिंग एंड ड्रग्स एज वेल। रेलिश एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ फिंगर फूड्स, अल्कोहल एंड क्यूबन सिगार्स हियर। कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल सेशन भी यहीं पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। This restaurant is Risala. Enjoy recipes straight from the royal kitchen at Risala. यहाँ से बैठ के आपको गार्डन, सिटी और मेहरानगढ़ फोर्ट के मेजेस्टिकल व्यूज देखने को मिलेंगे। इवनिंग टी, डिनर एंड ब्रेकफास्ट ऑल आर सर्व्ड हियर ओनली। ये आउटसाइड सीटिंग पिलर्स रेस्टोरेंट के अंडर आती है। इट ऑफर्स प्री प्लेटेड मील्स, स्नैक्स, राजस्थानी डेलिकेसीज एटसेट्रा। मेरे हिसाब से for an early morning breakfast and late sunset meals, this is the perfect place. रिसाला रेस्टोरेंट के सामने एक डेडिकेटेड बिलियर्ड्स रूम है। It is loaded with all the accessories and amenities which you can imagine for an enriching billiards gaming experience. This is the original air conditioning controls that was installed at the time of palace construction, making it approximately 100 years old. Daginida, tinneta, daginida, dinida, daginida, tinneta, daginida, dinida, daginida, tinneta, daginida, dinida, 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 The gift shop offers
vivid collection of modern and traditional clothes at reasonable prices. You can also buy other gifting item, accessories and souvenirs for your loved ones here. It also offers excellent collection of Rajasthani handcrafted jewelry. म्यूजियम भी प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है जो सुबह से लेकर शाम तक सबके लिए खुला रहता है. फॉर जनरल पब्लिक अ टिकट इज मैंडेटरी बट फॉर इन हाउस गेस्ट इट इज कॉम्प्लीमेंट्री. म्यूजियम इंक्लूड्स अ स्केल मॉडल ऑफ द पैलेस, इंफॉर्मेशन अबाउट द पैलेसेस कंस्ट्रक्शन and its legacy with details of royal families and their esteemed guests. You would also find some daily use items, collectibles and royal accessories. Vintage car garage is also a part of museum only. महाराजा उमैद सिंह एरोप्लेन्स के बहुत शौकीन थे, इसीलिए आर्किटेक्ट ने इस एरोप्लेन रेलिंग को उनके लिए गिफ्ट के तौर पर बनवाया. पैलेस गार्डन का ये ग्रीन कॉरिडोर आपको आउटडोर स्विमिंग पूल की तरफ लेकर जाता है. होटल के पास एक एक्सेप्शनल इंडोर पूल है बेसमेंट में, विच इज अनलाइक एनी अदर स्विमिंग पूल, बट अनफॉर्चुनेटली was closed during our visit.
ओके तो मैं अब आपको प्राइसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो वी हैव बेसिकली 4 रूम कैटेगरीज. जो पहली कैटेगरी हमारी दैट इज़ द पैलेस रूम. 800 स्क्वायर फीट के आसपास का रूम साइज़ है. और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो बहुत बड़ी रेंज है. 40,000 से लेके 60-65 हज़ार रुपये तक, डिपेंडिंग आप किस सीज़न में आ रहे हैं, क्या अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे. उसके बाद है हमारे पास हिस्टोरिकल स्वीट. 800 स्क्वायर फीट का एरिया है. 30 से 40 हज़ार रुपये इंक्रीज़ कर लीजिए. इसका प्राइस 80,000 90,000 तक भी चला जाता है, अगेन डायनामिसिटी की वजह से. उसके बाद वी हैव रॉयल 1 बेडरूम स्वीट. 1200-1300 स्क्वायर फीट्स का एरिया है. एंड मैंने 1,20,000 भी दिए हैं और 70-75 भी मिला है. एंड फाइनली वी हैव ग्रैंड रॉयल स्वीट जिसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट्स एंड कॉस्ट 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख रुपए तक भी चली जाती है. इसके अलावा वी हैव 2 प्रेसिडेंशियल्स, महाराजा एंड महारानी. बट उनका रेट का आइडिया आपको कोई भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है. आप रिटर्न गेस्ट हो, आपकी होटल के साथ रेपो कैसी है, आप एम्बेसडर स्टेटस होल्ड करते हो, कौन सा स्टेटस होल्ड करते हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उसके रेट्स पे. सो दिस इज़ ऑल हाउ दी ओवरऑल प्राइसिंग लुक लाइक्स. बट हाँ, पैकेजेस वगैरह भी चलते रहते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, जिस पे आपको अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट वगैरह मिल जाता है और मेजर मील वगैरह भी आप इंक्लूड कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे देख के आराम से डिसाइड कर सकते हो. बट हाँ, कीप ट्राइंग टाटा न्यू, बिकॉज टाटा न्यू के अंदर आपको स्पेशल डिस्काउंट्स आजकल चल रहे हैं. ओके तो पैलेस का वर्डिक्ट दे देता हूँ मैं आपको. देखिए, पैलेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो कंप्लीटली एक्सप्लेन करना, सब कुछ बताना इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट बिकॉज ऑफ द साइज़ दैट दे ब्रिंग इन, बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती हैं. आपको कुछ अच्छा लग सकता है, मुझे कुछ अच्छा लग सकता है, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे सकता हूँ, कुछ टिप्स दे सकता हूँ, सो दैट जब आप आओ तो आप अपना स्टे थोड़ा सा ज़्यादा और एंजॉय कर सको एंड यू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन इन चूजिंग द राइट रूम कैटेगरी एज वेल. रूम से ही स्टार्ट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले. देखिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप हिस्टोरिकल स्वीट के लिए तो चले ही जाओ, बिकॉज इनके पास स्वीट्स ज़्यादा हैं, रूम्स कम हैं. और अगर आप स्वीट लेते हो तो आपको अपग्रेड, जो बेटर स्वीट्स में अपग्रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बिकॉज हिस्टोरिकल स्वीट्स और जो बाकी स्वीट्स हैं उनमें प्राइस डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है. हमारे रूम की बात करें तो 311 की स्पेशलिटी ये है कि बिकॉज ये कॉर्नर में है तो थोड़ा बड़ा है. मेरी चॉइस या मेरी प्रेफरेंस कह सकते हैं आप कि मुझे मेहरानगढ़ फोर्ट जो आइकॉनिक है, मुझे अच्छा लगता है, बीन हियर अर्लियर एज वेल. तो अगर आपको ये व्यू चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली प्रेफर दिस साइड ऑफ द फ्रंट. सेकेंडली, जो बैक साइड है पूरे पैलेस की, वहाँ से गार्डन व्यू आता है विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. तो अगर आपकी प्रेफरेंस वो है तो आप वो व्यू भी ले सकते हो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग द रूम कैटेगरी फॉर यू. खाने की बात कर लेते हैं तो इनके पास 2 रेस्टोरेंट्स हैं, रिसाला और पिलर्स. पिलर्स बंद है बिकॉज डिपेंड करता है सीज़न पे. इस समय गर्मी बहुत है तो आउटसाइड सीटिंग, कम्प्लीटली आउटसाइड सीटिंग रेस्टोरेंट है, तो कोई मतलब नहीं बनता, आप परेशान हो जाएंगे अगर वहाँ पे बैठेंगे. तो रेस्टोरेंट्स को ऑपरेट नहीं करता है. आपको अपने तीनों मील्स यहीं पे एंजॉय करने पड़ेंगे, बी इट लंच, डिनर या फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंस आ जाता है पैलेस प्रॉपर्टीज़ में. यहाँ बुफे नहीं लगता है, देयर प्रेफरेंसेस मोस्टली आ ला कार्ट, तो आप अपने हिसाब से डिशेस ऑर्डर कर सकते हो. एक चीज़ और, प्राइसेस जो हैं डिनर के वो थोड़े ऑन द हायर साइड हैं, तो यू कैन चूज़ वाइजली. बट हाँ, खाना तो ऑब्वियसली बिकॉज बहुत ही क्यूरेटेड शेफ्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपको टेस्ट मिलेगा पैलेस प्रॉपर्टीज़ में, दैट इज़ वर्थ ब्रैगिंग फॉर. एक चीज़ और, मैंने बहुत बार जब मैं पैलेस प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इनफैक्ट कुछ सुपर प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में, तो ब्रेकफास्ट के लिए आप एक रात पहले अपनी कुछ चॉइसेस भी दे सकते हो कि आपको मॉर्निंग में क्या खाना है. अगर कोई स्पेशल डिश है जो आप एंजॉय करना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद द शेफ़, तो वो आपके लिए ऑलरेडी उसको प्रिपेयर करके मॉर्निंग में बना देते हैं. जो रिसाला रेस्टोरेंट है, कहूँगा उसी का पार्ट है चेंबर ऑफ प्रिंसेस. कोई फैमिली बड़ी है, अगर आप 6-7-8 लोग आ रहे हो या फिर मोर देन दैट, तो आप आराम से चेंबर ऑफ प्रिंसेस में बड़ी सीटिंग टेबल ऑक्यूपाई कर सकते हो एंड यू कैन एंजॉय योर फूड देयर. अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो इनका जो स्मोकिंग रूम है दैट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू डाइनिंग एरिया. देखिए, पैलेस में आप स्टे कर रहे हो, बट 2 से 3 दिन का स्टे तो क्या करेंगे, रूम एंजॉय करना हो गया, खाना वगैरह हो गया. उसके अलावा तो पैलेस ने इस चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए अरेंज की हुई हैं. सम आर कॉम्प्लीमेंट्री, सम आर पेड. पहले कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ आपको बता देता हूँ. तो म्यूज़ियम टूर होता है, पैलेस आफ्टरनून टी, क्यूरेटेड टूर ऑफ द पैलेस, कुकी मेकिंग, स्क्वॉश, टेनिस और बैडमिंटन, इसके अपने सेपरेट कोर्ट्स हैं, मॉकटेल मेकिंग, योगा, पीकॉक फेदर हंट, रिक्रिएशन रूम, बिलियर्ड्स, चेस, काइट फ्लाइंग. इसके अलावा कुछ पेड एक्टिविटीज़ हैं उनको सुन लीजिए. सो वी हैव हॉर्स राइडिंग सेशन एट पोलो क्लब. उसके बाद हॉर्स राइडिंग सेशन एट महाराजास प्राइवेट मारवाड़ हॉर्स स्टेबल, ट्रेजर हंट फॉर किड्स, एक्सपीरियंस द विंटेज कार,
हॉर्स कैरियज राइड, द प्रपोजल एक्सपीरियंस, क्वींस रिट्रीट एक्सपीरियंस, डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस एट कैंप ओशियन, क्यूरेटेड टूर ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट। जो सबसे एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ द प्रपोजल एक्सपीरियंस और क्वींस रिट्रीट एक्सपीरियंस, दे कॉस्ट 2 lakhs प्लस टैक्सेस। इसके अलावा अलग अलग रेट्स हैं, 5000, 3000, 3000। मैं लिस्ट डाल दी, आप आराम से देख सकते हो कि क्या है। और इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं कि आपको सबकी टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, आपको पहले से बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से चले जाओ और वेन्यू में चीज़ें चल रही हैं। यू हैव टू प्रायर इन्फॉर्म टू द रिसेप्शन। और सबका वेन्यू और असेंबली पॉइंट अलग अलग है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, टूरिस्ट के लिए तो ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बट इस पैलेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरा भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था वो हुआ था यहाँ की लग्जूरियस वेडिंग्स से। नॉट ओनली वेडिंग्स, आप अमीर से अमीर आदमी के छोटे मोटे फंक्शंस भी अगर उसको करने होते हैं ना, तो उसके दिमाग में इस पैलेस का नाम आता है। लोगों ने बर्थडेज और एनिवर्सरीज भी सेलिब्रेट किए हैं, वेरी बिग नेम्स, टाइकून्स। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि 70 रूम्स की कैपेसिटी है, तो 140, 170, 180 जो भी जिस हिसाब से भी ये लोग मैनेज करते हो, इतनी ही गेस्ट की स्टेइंग कैपेसिटी है। बट उसके अलावा अगर मैं बैंक्वेट की बात करूँ तो ये लोग 400 लोग, 300 to 400 लोगों को आराम से केटर कर ले जाते हैं। अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो मेहरानगढ़ फोर्ट इनके बिल्कुल डिस्पोजल पे है। रूम्स की ज़रूरत पड़ती है तो हरी महल ऑल्सो बिलोंग्स टू देम। तो कोई चैलेंज नहीं आता इन लोगों को। किसी भी टाइप से वेडिंग या कोई भी फंक्शन अगर मैनेज करना है तो इट्स ऑन फिंगर टिप्स ऑफ उमैद भवन पैलेस। देखिए, 6th मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है। इस टाइप की लग्जरी इंडिया में है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और जो इंडियन टाइकून्स या बिजनेसमैन से, नॉट ओनली देम, बाहर से भी बहुत पॉपुलर वेडिंग्स के लिए ये डेस्टिनेशन रहा है। आप सोचो और दे विल अरेंज दैट। हेलीपैड तो है ही इनके पास, बट इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी अगर आप सोच पा रहे हो, द होटल विल क्यूरेटेड फॉर यू। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की इंक्वायरी करते रहते हैं कि हमारा ये प्लान है, वो प्लान है, हम ये करना चाहते हैं। होटल के पास कभी ना नहीं होता है, बिकॉज अंदर ही, होटल के अंदर ही बहुत छोटे छोटे प्रेमिसेस इन्होंने इस तरीके से बना रखे हैं कि वो फंक्शन के हिसाब से आराम से उनको वो लोग डेकोरेट या मैनेज कर ले जाते हैं। देखिए, पूरा दिन पूरी रात 3-4 दिन निकल जाएंगे बताते बताते, एक्सप्लेन करते करते आपको। वेडिंग्स हो गई, इवेंट्स हो गए, रूम्स हो गए, आपके एक्सपीरियंसेस हो गए, और जो होटल का कटिया स्टाफ है उसकी तो क्या ही तारीफ़ करें। तो आप खुद आइए, एक्सपीरियंस करिए। मेरे हिसाब से इंडिया की जितनी भी पैलेस प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा नहीं कहूँगा किसी को डिच कर दें, बट उमैद भवन पैलेस डेफिनेटली आपकी लिस्ट में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारी मेहनत जाती है एक सही रूम चुनने में, आपको सही व्यूज़ देने में, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। सो अगर आपको एफर्ट पसंद आया हो देन डू कमेंट, प्लीज़ बताइए आपके थॉट्स कि आपको ये पैलेस कैसा लगा। अगर आप पहले आए हुए हों और आपने कोई और कैटेगरी ली हो जो, या फिर कोई स्पेसिफिक रूम जो कि आप कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली प्लीज़ जॉट इट डाउन। सेकेंडली, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट इसी टाइप की नॉट ओनली पैलेस प्रॉपर्टीज़ बट सुपर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ के टूर भी आपको फ्यूचर में मिलते रहें। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।